आज की कलीसिया च
ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ। जो पहाड़ समुंदर धरती, वक्त वक्त जीवां नाल भरती। जो पहाड़ समुंदर धरती, ओने वक्त वक्त जीवां नाल भरती। ओदा नाम है सब तो निराला, ओही साडा बख्शनहारा है। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਪਾਣਾ। ਜੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਪਾਣਾ। ਰਾਹ ਸੱਚ ਹੱਥ ਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਏ ਆਣ ਤਾਰਾ। ਰਾਹ ਹੱਥ ਸੱਚ ਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਣ ਤਾਰਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੋਨੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਰੱਖਦਾ ਖਿਆਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਕਰਦਾ ਏ ਰਖਵਾਲੀਆਂ, ਰੱਖਦਾ ਖਿਆਲ। ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਕਰਦਾ ਏ ਰਖਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਏ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਟਹਿਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਲੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਏ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਟਹਿਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਲੈ। ਸਾਦਗੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਲੈ। ਸਾਦਗੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਫਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਨਾਮ ਕਰ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਧੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਧੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਟੁੱਟੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਟੁੱਟੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਟੁੱਟੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਟੁੱਟੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਰਮਾਨ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਨਾਮ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਨਾਮ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਨਾਮ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਨਾਮ ਕਰ ਦੇ। 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪਲਟ ਨਾ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪਲਟ ਨਾ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਗਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ ਲੋ, ਸਗਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ ਲੋ। ਕਾਲੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾ ਸਾਵਤ ਕਰ ਲੋ, ਕਾਲੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾ ਸਾਵਤ ਕਰ ਲੋ। ਪਾਣੀ ਉਪਾਵੇ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਉਪਾਵੇ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਸੁਧਾਰ
आज शब्द का दिन है और हम सब लोग इस समय इकट्ठा हुए हैं तेरे सिंहासन के सामने। हम तेरे सिंहासन के सामने अपने परिवारों को लेकर आए हैं और तुझसे ये प्रेयर करते हैं कि हमारी जिंदगियों में दखल दो, हमारे परिवारों में दखल दो। हम स्वागत करते हैं पाक लो जी, आपका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर खुदावंद यहोवा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु नासरी, हम आपका स्वागत करते हैं। आज सब्त के दिन हम अपने परिवारों को आपके सामने लाए हैं, आपके सामने लाए हैं और आपके सामने ये प्रेयर करते हैं। सिंहासन पर आप स्वर्ग में बैठे हैं और आपकी चौकी जो है वो धरती पर है, आपके पांव इस चौकी पर हैं। हम आपके सिंहासन के सामने अपने परिवारों को लाते हैं, अपने परिवारों को लाते हैं। आप हमारे परिवारों पर दखल दें, हमारे परिवारों की जिंदगियों में दखल दें, हमारे परिवारों के फाइनेंस में दखल दें, हमारे परिवारों के जो काम रुके हुए हैं उनमें दखल दें, जो जादू टूना शराब है उनमें दखल दें। क्योंकि आपने हमारे नबी संत फैसल मसीह जी को ये शब्द दिए हैं यरूशलेम से उन दिनों में जब सारी दुनिया आपके बेटे प्रभु यीशु नासरी के आने का जन्मदिन की खुशियां मना रही थी, त्योहार मना रही थी और उसके उत्सव मनाए जा रहे थे, सेलिब्रेशन की जा रही थी। आपने उन दिनों में अपने पुत्र नबी हमारे संत फैसल मसीह जी को बुलाया और उनको महासामर्थ से भरपूर जो है बसा दिया और उन पर पवित्र आत्मा उतरा। जब उन पर पवित्र आत्मा उतरा तो उन्होंने ये शब्द दिए यहाँ और उनसे बड़े बड़े चमत्कार हुए और मैं खुद उन चमत्कारों और पाक जो रूह है उसकी महासामर्थ से भर गया। मैंने ये खुद महसूस किया अपनी जिंदगी के, मैं 66 साल में वो न पा सका जो मैंने अपने संत फैसल मसीह जी से ये सब पाया कि महासामर्थ जब आदमी पर उतरता है, किसी स्त्री पर उतरता है तो उसके क्या गुण उस आदमी में या उस पुरुष में या स्त्री में या बच्चे में आते हैं। पाकलो जी, आप हमारी जिंदगी में दखल दो, आप महासामर्थ से और स्वर्गदूतों की टोलियों से हमारी जिंदगियों में दखल दो, ताकि हमारे शरीर से वो घातक पाप हमारे शरीरों से जाते रहें। आप हमारी जिंदगी में आओ और अपने स्वर्गदूतों को भेजो। आपकी महासामर्थ की आग हमारे अंदर जो अहंकार है उसको जला दें, जो हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या भेदभाव रखते हैं उसको खत्म करें। आपकी महासामर्थ से यीशु नासरी के नाम से हमारे अंदर से क्रोध जाता रहे। पार्थ जी, आइए आइए हमारी जिंदगी में आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवारों में आइए और हमारे परिवारों में जो बिखराव है उसको दूर करिए। हम महसूस कर रहे हैं पार्थ जी, यीशु नासरी, हम आपको अपने बीच में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने ही बाइबल में कहा है कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ, मैं उनकी बातें सुनता हूँ, मैं उनके लिए अच्छा करता हूँ। और हम इस समय आपको अपने बीच में महसूस कर रहे हैं। आप द्वारा भेजी गई पाक रूह आपकी महासामर्थ के साथ स्वर्गदूतों की टोलियों के साथ यहाँ पर हमारे बीच में है। हम महसूस कर रहे हैं आपको, आपके पाक रूह को और अपने परिवारों को हम यहोवा प्रभु के सामने, खुदावंद के सामने हम महसूस कर रहे हैं कि आप सब हमारी बातों को कान लगा के सुन रहे हो और वो बातें आप सब जानते हो कि जो हम कहना चाहते हैं। खुदावंद जी, आप पाक रूह को महासामर्थ के साथ हमारे घरों में भेजो। हमारे घरों से जो निराशाएं हैं, वीरानियों के जो खंडर बन चुके हैं वो जाते रहें। हमारे दिलों में जो निराशा है, हमारे दिलों में जो धन का लालच है वो खत्म हो जाए। हमारे अंदर अगर कोई ऐसी बुराई है कि जैसे हम किसी की बात सुन के दूसरे को बताते हैं, जिसे चुगली कहते हैं, वो हमारे अंदर से बुरे गुण जाते रहें। हमारे अंदर कभी खोट की भावना ना आए, कभी किसी के लिए हम चोरी ना करें। हम अपना परिवार जो है अपनी मेहनत से, अपनी सामर्थ्य की कमाई से अपने बच्चों को खाना खिलाएं। वो कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे पाक रूह जी को कोई शोक हो। और खुदावंद जी, आप हमसे जो है नाराज हो जाए। हम आपसे वाचा करते हैं कि हम आपसे ये इस समय सब्त के दिन आपके सामने गहरे से रिश्ता और गहरा बनाना चाहते हैं।
और सत्यता के साथ जीना चाहते हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं आपके सामने, सिंहासन के सामने हम अपने परिवारों को लेकर कर रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं अपने परिवारों के लिए भी हैं और आपके लिए भी हैं कि आप हमारी प्रार्थनाएं सुनो और हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। आपकी योजनाएं ही हमारी जिंदगी में आए, आप जो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं वही आए। क्योंकि अगर एक याजक अच्छा होगा, उसके दिल में ये जो अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, लालच, निराशा, धन, दौलत, चुगली, चोरी और व्यभिचार नहीं होगा, तो ही वो याजक अपने होठों से ज्ञान की बातें हमें बता सकता है। और एक याजक को यही चाहिए, जैसा कि मलाकी 2:7 में लिखा है, क्योंकि याजक को चाहिए वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था खोजें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। वह एक पुल है, एक सेतु है जो हमारे को यहोवा से मिलाता है। तो मलाकी ने ये बात याजकों को बोली कि भाई तुम्हारे अंदर जो अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, तुम व्यभिचार में डूबे हो, तुम्हारे पास धन ज्यादा आया है, तुम अपनी स्त्रियों को छोड़कर जो है दूसरी कन्याओं से विवाह कर रहे हो, जो मूर्ति पूजा करते हैं, इसलिए तुम पापी हो गए। प्रभु यहोवा खुदावंद आपसे बहुत नाराज है और वो तुम्हें शाप देगा और तुम्हें वो भस्म कर देगा। इसलिए अपने आप को संभालो और अपने होठों पर सिर्फ प्रभु यहोवा की स्तुति ही तुम्हारे होठों से निकले और अपने अंदर के सारे पाप खत्म करो। क्योंकि खुदावंद यहोवा ये नहीं चाहता कि आप लोग पापों में डूबो। आप लोग एक ऐसा सेतु हो, आप लोग यहोवा के दूत हो, आप लोग उसकी जो सृष्टि बनाई है, उसने जो तारा मंडल बनाया है, उसने जो पृथ्वी बनाई है, दिन रात बनाए हैं, पशु पक्षी बनाए हैं, आपको बनाया, हमारे परिवारों को बनाया है। अगर वो ना बनाए तो हम कितनी ही दवाइयां खाते रहते हैं जिनके बच्चा नहीं होता और वो सारी उम्र बच्चे से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जब खुदावंद यहोवा और उसके पाक रूह महासामर्थ के साथ हम पर उतरते हैं, तो जो काम डॉक्टर नहीं कर पाते वो उसकी ब्लेसिंग से जो है कंसीव करता है बेबी, और दिनों में उनके यहाँ परिवार में किलकारियां मिलने लगती हैं। इसलिए जो एक याजक होता है वो एक यहोवा का दूत होता है। और अगर पुल में हम एक जो नहर पर या दरिया पर पुल होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, हमको आर पार लगाता है। लेकिन अगर उस पुल में मैटेरियल घटिया होगा तो हम पुल को नहीं पार कर पाएंगे, पुल बीच में टूट जाएगा और हम डूब जाएंगे या मर जाएंगे। इसी तरह एक अच्छा याजक जो है अपने विश्वासियों को, लोगों को यहोवा के साथ जोड़ता है। लेकिन अगर वो याजक व्यभिचार से भरा होगा, अहंकारी होगा, पापी होगा या उसमें कोई अवगुण होंगे, तो वो हमको यहोवा से नहीं जोड़ पाएगा, खुदावंद से नहीं जोड़ पाएगा। इसलिए मलाकी ने याजकों को ये फटकार लगाई है कि आप अपने अंदर से जो है वो घातक पाप हैं उनको निकालो और आपको महासामर्थ, आपको पाक तभी ये ब्लेस करेगी, तभी ये लोगों को प्रभु खुदावंद यहोवा के साथ जोड़ने का काम करेगी कि जब आप अपने अंदर को साफ करेंगे और आप में जो पाक रूह है उसके वरदान आएंगे। तो आज हम देखेंगे कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान से सीखो। तो वो परमेश्वर ने हमको क्या आज्ञाएं दी हैं, हम मत्ती अध्याय 6 और आयत 6 से शुरू करेंगे। वो देखेंगे कि हमारे नबियों ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है खुदावंद यहोवा का। मत्ती अध्याय 6 और आयत 6। पर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हमारे नबी जो बोल रहे हैं, कह रहे जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो ऊपर स्वर्ग में है उसके पास, उसके सामने प्रार्थना कर। क्या आप इसका मतलब ये समझते हैं कि वो बोल रहे हैं कि आप एक कमरे में जाओ और दरवाजा बंद कर लो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब परमेश्वर की खुदावंद यहोवा की आराधना करते हैं, अपने खुदावंद यीशु का नाम लेते हैं, पाक रूह को याद करते हैं, तो वो अगर आप घर पर नहीं है, किसी बाहर में है, जंगल में है, मैदान में है, रेगिस्तान में है, तो वहां ना कोठरी होगी ना उसका दरवाजा होगा। इसमें समझने वाली बात यह है कि वो दरवाजा, वो कोठरी कौन सी है और वो किस कोठरी के दरवाजे को बंद करने की बात करता है, वो हमें बता रहे हैं। मलाकी के लफ्जों से भी और मती के अध्याय में भी हमको ये नबियों ने समझाया है कि हम कोठरी में जाएं, यानी कि अपने दिल में जाएं, अपने दिल में उतरें और दिल से उतरकर खुदावंद यहोवा की चौकी के सामने जाएं जहां उसके पांव हैं और अपनी आंखों को बंद करें। ये दरवाजा वो है जो हमारी आंखें हैं। जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे तो हमारे दिल से ये जो अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, लालच, निराशा, धन दौलत, चुगली, चोरी, व्यभिचार जैसे पाप हैं, ये हमारे शरीर से बाहर होने चाहिए। तो ही वो दरवाजा, इस दरवाजे को बंद करने से ये सभी जो बातें हैं बाहर हो जाएंगी। ये दरवाजा बंद करना है, ऐसा दरवाजा बंद करना है कि हमारे शरीर से ये सभी बातें जाती रहें पाक रूह की महासामर्थ से। और हाँ जी, आगे पढ़ा जाए आयत 7। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਅਰਥਹੀਨ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। हालेलुया। हम ये समझते हैं कि अगर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, खुदावंद यहोवा की, तो कई लोग बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि अन्य जातियों के लोग जब वो प्रेयर करते हैं, कोई किसी ढंग से प्रेयर कर रहा है, कोई स्पीकर में सुबह सुबह अजान दे रहा है, कोई किसी नाम से पुकार रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर, हम ये समझते हैं कि परमेश्वर जो खुदावंद हमारा यहोवा है, उसके लिए ऊंचा बोलना कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए जो है बार बार बोलना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो समझता है कि हमारे दिल में क्या है, हम उससे क्या कहना चाहते हैं। उसने सृष्टि बनाई है, उसके कान हमेशा हमारे मुंह के साथ लगे रहते हैं, उसकी आंखें हमेशा हमारे शरीर को 24 घंटे देखती रहती हैं। ये नहीं कि हम सारा दिन पाप करें और शाम के समय जब हम प्रार्थना में बैठे तो हम उससे बोलें, नहीं यहोवा खुदावंद, हम तो तेरे ही हैं, हमने आज ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे दिल ना दुखे। पर उसको मालूम होता है कि आप सारे दिन क्या करके आए हो, इसलिए वो हमें बार बार चेता रहे हैं कि आप जब प्रार्थना में जाओ तो सारी ये जो बुराइयां हैं हमेशा के लिए, सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए अपने दिल, दिमाग, शरीर से निकाल दो, तो ही हमारा पाक रूह जी से गहरा रिश्ता बनेगा, तो ही हम अपने खुदावंद यहोवा पिता के एक अच्छे बेटे यरूशलेम के परिवार से कहलाए जाएंगे। अगर हम इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो खुदावंद यहोवा शोकित होंगे, पाक रूह हमको छोड़कर चली जाएगी और हम पर जो है क्रोध करेगी। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में जाता है तो जब तक वो स्कूल में दाखिल नहीं होता तो स्कूल वालों को उस बच्चे से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जिस दिन वो दाखिल हो जाता है तो उस दिन के बाद में अगर वो बच्चा लेट जाता है तो ये उसका दोष होता है और स्कूल वाले उसको जुर्माना लगाते हैं। अगर वो पढ़ाई पूरी नहीं करता या होमवर्क नहीं करता तो स्कूल की टीचर या स्कूल के मास्टर उसको दंड लगाते हैं। ठीक इसी तरह
जब हमने परमेश्वर को नहीं जाना होता तो हम जो मर्जी करते हैं, लेकिन दंड तो हमें उसका भी मिलता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमारी जिंदगी में ये बुरे दिन क्यों आ रहे हैं। और यही परमेश्वर की आज्ञा है कि आप जो अब तक गुमराह हो, दूसरे लोगों की तरह अनजान हो मुझसे, आओ मेरे पास, मैं तुमको चुनता हूँ और तुमको ये आज्ञा देता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी से जो है झूठ, लालच, धोखा, वासना, नशा जैसी अहंकार, चुगली, चोरी, क्रोध, व्यभिचार जैसे जो बुराइयां हैं वो अपनी छोड़ो। क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी में, मान लिया अगर कोई आदमी सड़क पर जा रहा है, पैदल जा रहा है, वो सोचता है मुझे इसके रूल फॉलो करने की क्या जरूरत है सड़क की, ये तो स्कूटर वालों के लिए है, कार वालों के लिए है। और वो जेब्रा लाइन क्रॉस कर जाता है, रेड लाइट क्रॉस कर जाता है, तो क्या होगा जब उसके सामने रेड लाइट है, अगर वो उसको क्रॉस करेगा, दूसरी तरफ ग्रीन लाइट है, उधर से जो लोग आ रहे हैं वो उसमें जो है बजेंगे, उससे टकराएंगे और वो घायल हो जाएगा। ये समझने की बात है कि सड़क पर जो भी चलता है रूल सबके लिए होते हैं, और यही रूल इस धरती पर रहने वाले प्राणियों के लिए हैं, और रहने वाले जीव जंतुओं के लिए हैं, रहने वाले इंसानों के लिए हैं। और यही आज्ञा परमेश्वर ने हमको दी है कि अगर हम अपनी जिंदगी में जो उसने हमको चुन लिया है, तो फिर जब हमने उसको चुन लिया है, उसको जान लिया है, तो हम उसकी जो आज्ञा है उसको माने, और जो उसने हमारे को बताया है कि इस व्यवस्था के अधीन हमारे शरीर में जो बुराइयां हैं उसको छोड़ें। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो जैसे कोई रेड लाइट जंप करता है उसका चालान हो जाता है, जैसे कोई तेज स्पीड से चलाता है उसका चालान हो जाता है, अगर कोई रोड पर हेलमेट नहीं पहनता, कार में सीट बेल्ट नहीं लगाता, उसका चालान हो जाता है। इसी तरह अगर हम झूठ बोलेंगे, लालच करेंगे, तो क्या होगा, हमारे घर में बीमारियां आ जाएंगी। अगर हम किसी को धोखा देंगे, नशा करते हैं, तो क्या होगा, हमारी जिंदगी में फेलियर हो जाएगा, हमारी जिंदगी में फेलियर शब्द आएगा। अगर हमारे बनते हुए काम बिगड़ेंगे, अगर हम किसी काम में जा रहे हैं तो वो काम नहीं होगा, और अगर हम किसी से जैसी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इंकार हमारे अंदर है, हमारे अंदर ईगो है, हमारे में चुगलियां करने की आदत है, क्या होगा, हमारे सिर पर कर्जा हो जाएगा, कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और अगर हम व्यभिचार में डूब जाते हैं, दूसरों पर बात पर गुस्सा करते हैं, हम अपना परिवार पालने के लिए चोरी करते हैं, तो क्या होगा, हमारे अंदर दुष्ट आत्मा आ जाएगी, दुष्ट आत्मा हमारे अंदर आकर और बुराइयों को जन्म देगी। इसलिए परमेश्वर ने यही आज्ञा दी है कि अपने अंदर से इन बुराइयों को खत्म करो। अगर आपने जिंदगी में सफल होना है तो ये जो गुण है पागलों के, उनको लेने के लिए हमें इन बुराइयों से दूर जाना होगा, तो वही हमें पागलों के महासामर्थ अंदर उतरेगी, उसके गुण मिलेंगे और उसके फल मिलेंगे। हाँ जी, आगे पढ़ा जाए। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਇਤ 9, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारे नबियों ने बोला है कि हम उन लोगों के समान न बने, ना ऊंचा बोले, क्योंकि प्रभु यहोवा कान लगाकर हमारी सब बातें सुनता है। हमारे कहने से पहले वो जान जाता है, जैसे हम अपने परिवार में अपने बच्चों की बातें जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो तो सृष्टि का परमेश्वर है, उसने सारी सृष्टि बनाई है, ब्रह्मांड बनाया है। पृथ्वी का मतलब पृथ्वी एक ग्रह होता है, सृष्टि का मतलब सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, जितने भी ग्रह तारागण हैं वो सभी सृष्टि में आते हैं, ब्रह्मांड में आते हैं। और वो उसको बनाने वाला केवल एकमात्र खुदाबंद यहोवा है जिसने ये सृष्टि बनाई है। इसलिए जब हम उसके सामने प्रेयर करते हैं तो उससे ज़्यादा ऊंचा भी नहीं बोलना पड़ता, क्योंकि वो जानता है हमारी योजनाओं को, हमारे दिलों को, कि हमारे दिलों में क्या है। सिर्फ एक ही बात वो चाहता है कि हम उसके साथ अपना जीवन, अनंत जीवन पाने के लिए सिद्धता के साथ उससे
पाक और गहरा रिश्ता रखें, साफ रिश्ता रखें। हम प्रेयर पढ़ेंगे जबूर 82 आयत 1 से 8 और आप सब साथ में बोलेंगे। परमेश्वर की मंडली विच परमेश्वर बैठा है, परमेश्वर बैठा है, वो देवतियां दा न्याय करता है। ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। तुसी कद तोड़ी ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋੜੀ केड़ा न्याय करोगे ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ अते दुष्टां दा ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ पक्षपात करोगे, ਪੱਖਪਾਤ ਕਰੋਗੇ। निताने अते ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ यतीमां दा ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ न्याय करो, ਨਿਆਂ करੋ। मस्कीन अते ਮਸਕੀਨ ਅਤੇ गरीबां दा ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ इंसाफ करो, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। निताने अते ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ कंगालां नूं ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ बचाओ, ਬਚਾਓ। उन्हां नूं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दुष्टां दे हत्थों ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ छडाओ। ਛੁਡਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਸਭੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਆਤਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਰੋਗੇ ਮਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਂਗੂ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਓਗੇ। हे परमेश्वर, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ उठ ਉੱਠ संसार का न्याय कर, ਸਭ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ। क्यों जो ਕਿਉਂ ਜੋ तू सारिया कौमां नूं ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ अपनी ਆਪਣੀ मिरास बनाएगा। ਵਿਰਾਸ ਬਣਾਏਗਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सानू हमेशा परमेश्वर की ये जिहड़ी आराधना प्रेयर है ये करनी चाहिए है। वो जदों परमेश्वर की आराधना करनी है तो दरवाजे कमरे वाले नहीं बंद करने, आप अपने दिल वाले जिहड़े दरवाजे है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੱਢਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਯੋਰ ਦੀ ਰੋਣਾ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਗੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਈਗੋ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਈਗੋ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਗੋ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਾ ਸਮਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਕਾਕ ਕਰ ਦੇਗੀ।
और जिस तरह की आज तारीख है 6 महीना भी 6 और 2026 6 एक 666 जड़ा नंबर हैगा वे ये शैतान का नंबर है। शैतान इस नंबर को जिस तरह होर धर्मां विच भी नंबर होंदे ने, कोई 13 नंबर होंदा है, कोई अलग अलग नंबर होंदे ने, कोई लक्की मनदा है, कोई अनलक्की नंबर है। ये 666 नंबर जिहड़ा अज दा बनदा वे ये बहुत ही ज़्यादा अनलक्की नंबर है। प्रकाशित वाक्या 13/8 दे विच दस्सिया जांदा है कि बाइबल दे विच कि ये शैतान का नंबर है और इस नंबर दे नाल शैतान साडी जिंदगियां विच आउंदा है और खराबियां करदा है, सानू भटकाउण दी कोशिश करदा है। सो इस करके इस तो बचण दा रास्ता इक्को एक रास्ता है कि असीं खुदावंद यहोवा दे नाम नाल जुड़ना है, यीशु नासरी दे नाम नाल जुड़ना है। यीशु नासरी नाल जदों असीं जुड़ांगे उन्हां दी पाक रूह महासामर्थ साडी जिंदगी च आएगी और जदों जिंदगी च आएगी उस दे नाल साडी जिंदगी च रुके हुए सारे काम होणगे। और जदों असीं अपनी जिंदगी च प्रेयर करनी है ਉਹਦਾ नाम लेना है तो वो कोठरियां जड़ियां ने ਉਹਦੇ दरवाजे दिल वाले दरवाजे तो सारे पाप बाहर कढ़ने हैं और असीं हिब्रू भाषा दे विच असीं प्रेयर नूं पढ़ांगे। मैं इकल्ला ही पढ़ांगा तो तुसीं उहनूं ध्यान नाल सुनना है। अवीनु शेब आशमायिम, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, ताब मलखूत एक आपका राज्य आए, ये आसे रेत जनखा ना आरतस आपकी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। वे आशेर ना आसे वाशमायिम जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। 3 लान हायों लेखे में स्फूकेनु हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। उस लाखलानो एक ऐश अमरदेनु और हमारे अपराधों को माफ कर। हम अपने अपराधों की परमेश्वर खुदावंद यहोवा से भी माफी मांगते हैं। क्यों? अगर हम दूसरे के अपराधों को माफ करेंगे तो ही परमेश्वर हमारे अपराधों को माफ करेगा। का आशेर सोल की मना खनु ला आशेर अश्मनानु जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया। वे अलतरी एन देर मसा और हमारी गवाही कर ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, ताकि लोग हमें तंग ना करें, हमें बार बार मुसीबत में ना आना पड़े, हमें दुख न उठाने पड़े। कि इमस लेनु मिनहारा हमें बुराई से बचा। कि लेखा हार मम लेखा क्योंकि राज्य वे हागे पूरा वे अति फेरे और महिमा और पराक्रम ले ओलामिन आमीन सदा आपके हैं आमीन। वे शेर यीशु मसीह यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर यहोवा हमने शनिवार के दिन सब्त के दिन जब लोग सब अपने कामों धंधों में व्यस्त हैं इस 1 घंटे की प्रेयर में आपके सामने, आपके सिंहासन के सामने, आपकी चौकी के सामने परिवारों के साथ आकर प्रेयर की। आपने सुना जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में चलती है वैसे आपकी मर्जी धरती पर चले। और जैसे हम अपने बच्चों को जानते हैं, उनके दुखों सुखों को जानते हैं, आप हमारे सबके पिता हैं। आप हमारे परिवारों में हमारे दिलों को, हमारी योजनाओं को जो है वो अपने ढंग से सफल करें। हम तो बच्चे हैं, हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी में क्या अच्छा है। आपकी योजना हमारी ज़िंदगी में आए और हमें हर बुराई से आप बचाओ। और हम चाहते हैं कि आपका नाम लेने वाले सदा इस दुनिया में, इस सृष्टि में ब्लेस पाते रहें। पाक रूह माँ समर्थन पर बने रहे और उनको हर बुराई से बचाए। और वो इस वचन को जो भी लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन सुने, वो जब जहाँ भी जाएं उनकी साथ पाक रूह की महासमर्थ और स्वर्ग दूतों की टोलियां उनके साथ जाएं। और जहाँ भी वो जाएं प्रभु यीशु नासरी के नाम से वहाँ सामर्थ, महासामर्थ और पाक और स्वर्गदूतों की टोलियां अपना चमत्कार दिखाएं। और जहाँ जो जादू टोना श्राप है वो सदा के लिए जाते रहें। वहाँ जो बीमारियां हैं वो सदा के लिए दूर हो जाएं। किसी को दुष्ट आत्मा है तो वो जाती रहे प्रभु यीशु नासरी तेरे नाम से, पाक और की महासामर्थ से। जहाँ काम रुके हैं, लोग कर्जों में हैं, जिनके पास घर नहीं है,
पापों की महासामत प्रभु यीशु नासरी तेरे नाम से हम सब कुछ ठीक हो जाए। अगर किसी के परिवार में कोई बीमारी है, दुष्ट आत्मा है, कर्ज में है, फाइनेंस तंगी है, रोजगार परिवार में टकराव है, प्रभु यीशु नासरी तेरे नाम से सब कुछ दुरुस्त हो जाए, एकदम सीधा ठीक हो जाए तेरे नाम से सदा के लिए। हर घर में जो तेरा समाचार सुनेंगे हमारे सिरों पर रखा, हमारे सिरों से निराशाओं की जो है वो राख आपके स्वर्गदूतों ने हटाई, हमारे सिरों पर आपका हर्ष वाला तेल लगाया, नौटे ऑयल लगाया। आप हमारे सिरों पर जो ताज रखा है उसके कारण हम आज भैंस हो गए। आप आपका धन्यवाद अदा करते हुए तुम्हें शुक्र होगा प्रभु यीशु मसीह पाको जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी महासामर्थ हमेशा हम पर बनी रही। आमीन आमीन आमीन।